जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 4 श्लोक 31। यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोको अस्त्य यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सतम्। इस प्रकार यज्ञ विधान के अंत में जो आत्म साक्षात्कार द्वारा शुद्ध चेतन अनुभव ज्ञान प्राप्त होता है, उसी को ब्रह्मनिष्ठ लोग अहम ब्रह्मास्मि मंत्र का जप करते हुए सेवन करते हैं। इस प्रकार जो लोग इस यज्ञ शेष के अमृत से तृप्त होकर अमरत्व प्राप्त करते हैं, वे सहज ही ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। परंतु जिन लोगों से इस आत्म संयम रूपी अग्नि की सेवा नहीं हो सकती और जो लोग जन्म धारण करके भी योग यज्ञ का अभ्यास एवं संपादन नहीं करते, उन्हें कभी ब्रह्मानंद प्राप्त नहीं होता। जो लोग लौकिक क्रियाओं को भली भांति संपादित न कर सकते हों, उनके संबंध में पारलौकिक अवस्था की तो कोई बात ही नहीं हो सकती। Those who eat the remnants of the sacrifice, which are like nectar, go to the eternal Brahman. This world is not for the man who does not perform sacrifice. How then can he have the other? O Arjuna, they go to the eternal Brahman in course of time after attaining the knowledge of the self through purification of the mind by performing the above sacrifices. He who does not perform any of these is not fit even for this material world. How then can he hope to get a better world than this? ఓం. నా సద్గురు సందేశము గీతాసుధ పరసత్మాత్మ శ్రీ యశ్పాజీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయము 4 జ్ఞానయోగము శ్లోకం 31. యజ్ఞశిష్టామృత భుజో యాంతి బ్రహ్మ సనాతనం నాయం లోకోస్య యజ్ఞస్య కుతోన్య కురుసత్తమా. ఈ ప్రకారమైన యజ్ఞ విధాన అంతములో ఏ ఆత్మసాక్షాత్కారము ద్వారా శుద్ధ చైతన్య అనుభవజ్ఞానం లభిస్తుందో దానిని బ్రహ్మనిష్ట కలిగిన వారు అహం బ్రహ్మాస్మి మంత్రజపం చేస్తూ సేవిస్తూ ఉంటారు. ఈ విధంగా ఎవరు ఈ యజ్ఞశేషమైన అమృతంతో తృప్తులై అమరత్వమును పొందుదురో వారు సహజంగా బ్రహ్మస్వరూపులవుతారు. కానీ ఎవరైతే ఈ ఆత్మ సంయమ రూప అగ్నిని సేవించలేరో, ఎవరు జన్మధారణ చేసి కూడా యోగ యజ్ఞాభ్యాసమును చేసి దానిని నెరవేర్చరో వారికి ఎన్నడూ బ్రహ్మానందము ప్రాప్తించదు. ఎవరైతే ప్రాపంచిక కార్యక్రమములను చక్కగా నెరవేర్చరో వారి విషయంలో పారలౌకిక స్థితిని పొందుతారు అన్న మాటే లేదు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జయ సద్గురుదేవ్, జయ ప్రసరణం. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം അധ്യായം 4 ശ്ലോകം 31. യാഗാനുഷ്ഠാനത്തിൻ്റെ അവസാനം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ശുദ്ധവും ബോധപൂർവമായ അറിവിൻ്റെ അനുഭവം അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്ന മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മത്തിൽ അർപ്പണബോധമുള്ള ആളുകൾ ആഗിരണം ചെയ്യുന്നു. ഈ വിധത്തിൽ ഈ യാഗശേഷത്തിൻ്റെ അമൃതിൽ തൃപ്തരായി അമർത്യത നേടുന്നവർ എളുപ്പത്തിൽ ബ്രഹ്മസ്വരൂപന്മാരാകുന്നു. എന്നാൽ ഈ ആത്മനിയന്ത്രണത്തിൻ്റെ അഗ്നിയെ സേവിക്കാൻ കഴിയാത്തവരും ജനിച്ചതിന് ശേഷവും യോഗയാഗം പരിശീലിക്കുകയും അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യാത്തവരും ഒരിക്കലും ബ്രഹ്മാനന്ദം നേടുന്നില്ല. ലൗകിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നന്നായി ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് ഒരു അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനും കഴിയില്ല. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. जय सद्गुरुदेव, जय पदशरणम. यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको अस्त्य यज्ञस्य
कुतो अन्य कुरु सत्तम। एहि प्रकार यज्ञ विधानक अंत में आत्म साक्षात्कार सँ जे शुद्ध चेतन अनुभव ज्ञान प्राप्त होइत अछि, ओहि ज्ञान के ब्रह्मनिष्ठ पुरुष अहम ब्रह्मास्मि मंत्रक जाप करैत सदिखन सेवन करैत छथि। एहि प्रकार सँ जे लोक एहि यज्ञ शेष अमृत सँ तृप्त भ अमरत्व प्राप्त करैत छथि, ओ सहज रूपेण ब्रह्म स्वरूप बनि जाइत छथि। मुदा जिनका लेल आत्मसंयम रूपी अग्निक सेवा संभव नहि, आ जे मनुख जन्म लइयो क योग यज्ञक अभ्यास नहि करैत छथि, तिनका ब्रह्मानंद कखनो प्राप्त नहि होइत अछि। जे लोक लौकिक क्रियाकलाप नीक सँ नहि कऽ पबैत छथि, हुनका सबके संबंध में तऽ पारलौकिक अवस्था पर चर्चा करबाक कोनो प्रश्न नहीं उठैत अछि। जय गुरुदेव, जय पदशरणम। अध्याय 4 श्लोक 31। अशा प्रकारे यज्ञविधीच्या शेवटी आत्मसाक्षात्कारद्वारे प्राप्त झालेल्या ज्ञानाचा शुद्ध जाणीवपूर्वक अनुभव ब्रह्माला समर्पित लोक अहम ब्रह्मास्मी या मंत्राचा जप करून घेतात। अशा प्रकारे या यज्ञशेषाच्या अमृताने तृप्त होऊन ज्यांना अमरत्व प्राप्त होते ते सहजपणे ब्रह्मस्वरूपच बनतात। परंतु जे लोक या आत्मसंयमाच्या अग्नीची सेवा करू शकत नाहीत आणि जे जन्म घेतल्यानंतरही योग यज्ञ करत नाहीत, त्यांना कधीही ब्रह्मानंद प्राप्त होत नाही। जे लोक सांसारिक कृत्ये चांगल्या प्रकारे करू शकत नाहीत, त्यांच्यासाठी दिव्यस्थितीची चर्चा होऊ पण शकत नाही। जय गुरुदेव। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यश रूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।